नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव गुंडराज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय, जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Hamaria ko jumbo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, and there's a lot of people. To all our viewers in Kerala, Swagatam. To all our viewers in Tamil Nadu, Vanakkam. आप सब लोगों को सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, बाकी सब जो भी अपने आप को कहना हो कह लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो। Do subscribe to the channel. The aim is to reach a crore. अभी तक आप हो गए हैं कुछ 65-70 लाख के करीब हो गए हैं। अब 1 करोड़ की तरफ जाना है, 1 करोड़ की तरफ अग्रसर हैं साहब। That's it. That's what we are planning to do. That's what we are doing. Now the point is, प्रदीप जी, bomb blast in Delhi yesterday. We talked about it even yesterday. कल भी उसके बारे में बात करी। और ये तो मेरा ये कहना है कि ये तो एक्सपेक्टेड था ही। आपने जब जैशे मोहम्मद की, हम लोगों ने जब जैशे मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स तोड़े, वो जो क्या नाम है उसका, यूसुफ अजहर जो है, मोहम्मद अजहर है, क्या नाम है उसका, यूसुफ अजहर, मसूद अजहर के जो भाई है, हाँ, he was killed and he was a mastermind of the Kandahar hijack. मेरा ये कहना है तो you expected retaliation. We should have been prepared for this. Thankfully the casualties are quite low. There only 10 people died, thankfully. क्योंकि वो अगर वो उस लाल किले के इलाके में आप गए हैं तो मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा तो ये होगी 50-60 लोगों को मार दिया जाए, लेकिन फिलहाल थैंक गॉड, बट स्टिल इवन one life lost is one life too many. But मोदी जी के स्लोगन सर, act of terror is an act of war. Yes. आपने कहा था मिस्टर मोदी, an act of terror is equivalent to an act of war. There will be retaliation. Operation Sindoor 2. The whole country is waiting for Operation Sindoor 2. और ऑपरेशन सिंदूर टू बी कंप्लीटेड, बिकॉज मोदी जी ने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, तो करिए, वी आर ऑल वेटिंग। और साथ में देयर वाज वन थिंग दैट द बीजेपी गवर्नमेंट वाज वेरी वेरी प्राउड ऑफ, कि दिल्ली में या उसके आसपास कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई है जब से मोदी जी की सरकार आई है। और बात भी ठीक है, 2014 के बाद तो कोई आतंकवादी घटना हुई नहीं, 11 साल 12 साल हो गए, और दिल्ली में ये 15 साल के बाद या 14 साल के बाद आतंकवादी घटना हुई है। सो आई थिंक वन शुड नॉट बिकम टू एरोगेंट और कंसीटेड, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। एंड इन फैक्ट, इज दिस अ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस? आई थिंक देयर इज। इज इट समथिंग दैट द इंटेलिजेंस कम्युनिटी विल introvert, will look at itself, will introspect, not introvert, I'm so sorry, will introspect and analyze? I don't think so. They've never done it before. But I think, I don't expect them to do it again. I think the J&K police, getting the information, picking up doctor from there was combined interstate raids everywhere. तो जो impact था, शायद वो impact reduce कर दिया। Impact reduce हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, correct? Because जिस प्रकार से doctors लोग को उठा लिया था, they picked up all the doctors. Only one doctor escaped, and they were looking out for him, and that is this doctor. Dr. Umar. Yes, Dr. Umar, who escaped. Dr. Death, they're calling him now. Who escaped the dragnet, and probably took the car wandering since morning around Delhi, and then ultimately in the evening, got himself in the blast. तो अब ये I think Dr. Umar has been arrested, sir. Dr. Umar Mohammed, they are trying to ascertain his genetics. Yes. लेकिन जो मरा है उसमें वो कोई और है शायद, पता नहीं, अभी मुझे मालूम नहीं। 3 लोग तो मरे हैं उसमें, so they're trying to find out. So let's go straight across to our guests. We've got a wonderful panel of guests today. Let's go straight across to them. Dr. Dinesh Pal of the RJD from Chhapra in Bihar. Dr. Dinesh Pal साहब नमस्कार। डॉक्टर दिनेश पाल जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया। अरे बढ़िया, क्या बात है। BNK, हाउ आर यू? सीइंग यू आफ्टर 1 week, राइट? BNK, you all right? You don't sound all right. Are you okay? शैलेश पांडे जी नमस्कार, हर हर महादेव, कैसे हैं? जय श्री राम। जय सिया राम टू यू एज वेल सर, जय सिया राम। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश पाल फ्रॉम छपरा इन बिहार। डॉक्टर दिनेश पाल साहब, 2 चीजें हैं, मैं चाहूंगा आप तय करें, आप किस चीज पे पहले बात करना चाहेंगे। एक तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली में,
मतलब कि 14 साल के बाद ऐसा कोई मामला हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, बिहार में जिस प्रकार वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़ गया है, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है इस बार, सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं बिहार में जब से चुनाव शुरू हुए हैं, तब से लेके आज तक। अब इसके पीछे क्या वजह है, डॉक्टर साहब बताएं प्लीज। देखिए, बिहार में जो चुनाव का माहौल चल रहा था कि लंबे समय से एक ही मुख्यमंत्री थे लगातार, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, बीच में मांझी जी को छोड़ दिया जाए तो एक और उनका उम्र बहुत अंतिम पड़ाव पे था। कई उनकी हरकतें से लग रहा था कि वो ठीक संतुलन ठीक नहीं है, अस्वस्थ ही नहीं है। तो एक उसके खिलाफ, और जिस तरह से अपराध बिहार में बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे थे, हत्याएं प्रत्याएं हो रही थी, एनसीआरबी के आंकड़ा के अनुसार यूपी के बाद दूसरे नंबर पर था, और भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ा। इधर बीच जैसे कैग की रिपोर्ट आई, 71,000 करोड़ का गबन हुआ। अभी आरके सिंह जो भाजपा के पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने कहा 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो इन सारे समस्याओं को लेकर दूसरी तरफ पलायन, बेरोजगारी का मुद्दा, गरीबी बेतहाशा बढ़ी हुई, बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य बिहार बदहाल है। तो उसको लेकर के सब परिवर्तन का जो बिहार में असर दिख रहा है, बिहार की जो जनता है वो चाहती है कि अब एक परिवर्तन हो, और बहुत जोश के साथ, बहुत जुनून के साथ बिहार की जनता इस बार मतदान करने गई। और जो युवा थे, बाहर रह के तैयारी करते थे कंपटीशन का, पुलिस लाठियां बरसाती थी, वे गांव की तरफ लौटे और वो मतदान करने गए। और छठ में जो बाहर के दूसरे राज्यों में जो काम करने गए थे हमारे भाई साथी श्रमवीर लोग, वे आए थे टिक कर, इस बार बोले कि नहीं, हम बार बार मजबूर हैं एक मजदूर के रूप में पलायन करने के लिए, बाहर के फैक्ट्रियों में जाने के लिए। तो एक ऐसी सरकार बने जो बिहार में ही रोजगार दे, बिहार में ही नौकरी दे, तो वे ठहरे और वो भी बढ़ चढ़ के वोट दिए। और हमारे माँ बहनों ने जो हम लोगों ने कुछ मुद्दों को लेकर हम लोग उनके बीच गए कि नहीं, हम लोग जो गैस सिलेंडर है उसे 500 का देंगे, 14 जनवरी को हम 30,000 रुपया आपको एक साल एक मुफ्त खाते में भेजेंगे, जिस तरह 2,500 महीने माई बहन योजना है। तो और उसके बाद जो अति पिछड़ा समाज था, जिसका आरक्षण के विस्तार की बात थी कि जो अब पंचायती चुनाव में 20% आरक्षण मिला है, उसको हम 30% करेंगे, और जो विस्तारित आरक्षण जिसको नवीन अनुसूची में शामिल कराना है। और फिर जो गरीब थे, जिनको जमीन नहीं था, मकान नहीं था, भूमिहीन थे, उनको हमने कहा कि सरकार बनेगी 3 डिसमिल से 5 डिसमिल तक जमीन दिया जाएगा। तो इन सारे मुद्दों को लेके बिहार में एक जनता जो है बहुत एग्रेसिव होकर मतदान करने गई, और यह बहुत सुखद है। हम पूरे बिहार की जनता को अपनी पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने लोकतंत्र को और मजबूत किया है, बढ़ चढ़ के मतदान किया है। बीजेपी, दिनेश जी, डॉक्टर दिनेश पाल, दिनेश जी, बीजेपी का कहना है कि मोदी जी का जादू है, मोदी जी का जादू, लैपटॉप वर्सेस कट्टा, लोगों ने लैपटॉप को चुना, रंगदारी, खंडनी, करप्शन, लोगों ने सुशासन को चुना, लोगों ने जंगल राज वर्सेस सुशासन के बाद मोदी साहब ने किया डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे रोड, एक्सप्रेसवे, लोगों ने एक्सप्रेसवे को चुना, डेवलपमेंट को चुना। इसलिए लोग भारी मतों से बाहर निकल कर आकर मोदी नीतीश को वोट दिया, यह बीजेपी का कहना है। डॉक्टर दिनेश पाल जी, देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी मुंह से इस तरह की भाषा, कट्टा, दुनाली, सिक्सर, मार देंगे छाती में 6 गोली, ये बहुत ही शर्म की बात है। और बिहार की जनता उसको बहुत गुस्सा व्यक्त की, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो जिस तरह से बाकी राज्य उनको बेहतर हो रहा है, जिस तरह उनके गुजरात विकास कर रहा है, बिहार को भी बेहतर बनाया कि बिहार को मजदूरों का राज्य समझते हैं। और बिहार के लोगों ने, और उनको 11-12 साल, 11.5 साल उनके प्रधानमंत्री रहते हो गया। नीतीश जी बार बार कहते रहे कि बिहार में पटना यूनिवर्सिटी बहुत पुराना है, 1920 में बना, उसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे दीजिए। और मोदी जी ने नहीं किया, मोदी जी ने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं दिया इतना दिनों में, एक फैक्ट्री नहीं दे पाए। तो मतलब बिहार के नाम, बिहार में कुछ काम नहीं किए, और बिहार में सिर्फ आते हैं तो ये उलूल जुलूल फालतू की बातें, इधर कट्टा दुनाली, ये सब नहीं। बिहार की जनता चाहते हैं कि उससे हमारा भला नहीं होने वाला। बिहार की जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए। तो बिहार की जनता मुद्दों पे वोट दी है, न कि मोदी जी के फालतू उलूल जुलूल बातों पे वोट दी है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, डॉक्टर दिनेश पाल जी, ये आपसे पूछना चाहता हूं, पता नहीं है मुद्दा आपको याद भी है कि नहीं है, मुझे तो याद है भैया, मैं तो बहुत पुराना पत्रकार हूं। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार करने को आए थे, शैलेश पांडे जी आप भी सुन लीजिए, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। मोतिहारी में उन्होंने कहा था कि मोतिहारी में जो फैक्ट्री बंद हो गई वो शुरू करेंगे। देखिए, मोतिहारी में ही नहीं, छपरा में भी बोला था उन्होंने। छपरा और मोतिहारी दोनों जगह बोले थे कि जब हम आएंगे के बने हुए चीनी मिल का हम चाय पियेंगे, लेकिन वो 10 साल बीत गए, आज तक नहीं शुरू हुआ। 10 साल कहाँ बीत गए, ज्यादा हो गए ना, 11 साल हो गए। तो वो बीत गए, हम बोले 10 साल बीत गए, यानी कि 11 साल बीत गए, उससे ज्यादा ही बीता, लेकिन आज तक नहीं बना पाए। तो मोतिहारी की शुगर मिल शुरू नहीं हुई अभी?
नहीं, दोनों 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 नहीं हुई, मढ़ौरा की भी नहीं हुई और मोतिहारी की भी नहीं हुई। बीच मढ़ौरा, में हम लोग जब मोतिहारी 17 दोनों की 17 माह सही मैं मगर सरकार में थे तो रीगा में पाल चालू जी, किया। डॉक्टर दिनेश पाल जी, 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था एनडीए मोदी साहब ने, 1 करोड़ लखपति दीदी हम बना देंगे। क्या इंस्पायर्ड नहीं होंगे लोग? 1 करोड़ नौकरी अगर मोदी साहब दे रहे हैं, 1 करोड़ लखपति दीदी अगर बन रहा है क्या, और 7,500 करोड़ पहले ही बांट दिया था दिनेश पाल जी, तो क्या महिला सशक्तिकरण ये सब फैक्टर नहीं था कि लोग बाहर निकलकर भारी संख्या में बीजेपी को वोट दिए? डॉक्टर साहब, देखिए देखिए, जब आप सत्ता में नहीं हैं तो अगर कहेंगे तो लोग एक बार सोचेंगे कि आप आएंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन आप लगातार सत्ता में बने हुए हैं, केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं। उसके बावजूद उतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हर जिला में हम फैक्ट्री बनाएंगे, जो कि पूरे बिहार में इतने दिनों में एक फैक्ट्री नहीं बना पा रहा है। वो अब कह रहा है कि हम 5 साल आएंगे तो जिलों में फैक्ट्री बनाएंगे। मोदी जी 2014 में भी बोले थे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन विदेश से काला धन भी लाएंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, 15 मतलब तमाम योजनाएं, किसानों की आय दुगुना करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि 2022 तक हम सबको पक्का मकान देंगे, लेकिन आज वो घोषणा में कर रहे हैं कि हम 5 साल में 50 लाख मकान देंगे। तो मोदी जी इतना झूठ फेंक दिए, इतना झूठ बोले हुए हैं कि जनता अब उनकी बातों पे विश्वास नहीं करती है। कि आपको जब समय दिया हुआ है और आप हर चुनाव में कहते हैं हम अगली बार करेंगे, अगली बार करेंगे, भाई कब करेंगे? आप करिए। हमने जब कहा था 2020 में कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो हम जब 17 महीना की सरकार बनी नीतीश जी की, तो नीतीश जी से हमने अपने शर्तों पे कहा कि हम आपके साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन आपको नौकरी देना पड़ेगा, जातिगत सर्वेक्षण करना पड़ेगा, आपको आरक्षण का विस्तार करना पड़ेगा। जी। और हम लोग अपने वो वादों को पूरा करने की भरपूर कोशिश की। इसलिए हमारे तेजस्वी जी पे बिहार में विश्वास बना युवाओं में कि नहीं, वे जो कहते हैं वो करते हैं और सरकार बनेगी तो करेंगे। तो यह एक विश्वास हमें जीता है। मुख्यमंत्री आवास योजना जो है, मुख्यमंत्री विकास योजना, जिसके तहत 10-10 हजार रुपए दिए गए महिलाओं को अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, उसमें जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा 10-10 हजार रुपए दे दिया गया लोगों को। अब 6,70,000 महिलाओं को दिया गया है। तो महिला सशक्तिकरण, तो उससे मतलब वोट उनकी तरफ नहीं जाएगा क्या? आपकी तरफ क्यों जाएगा? पैसा तो उन्होंने दिया। बताइए। देखिए, उस ठीक है, सरकारी पैसा को चुनाव के समय भी उन्होंने बांटा, आचार संहिता का उल्लंघन भी किया चुनाव आयोग से मिलके। उसका भी गलत संदेश गया कि नहीं ये घूस की तरह दे रहे हैं, अगर देना था तो पहले क्यों नहीं दिए? क्योंकि देखिए, जब जातिगत सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया तो उसमें 94 लाख परिवार ऐसे सामने आए जिनके मासिक आय 6,000 से कम थे, और 10,000 से कम मासिक आय वाले 64%, 63% के आसपास बिहार की आबादी थी। उस समय नीतीश जी ने कहा था कि जो आबादी 94 लाख कुछ परिवार है जो 6,000 से कम कमाती है, उसको हम 2 लाख रुपया देंगे रोजगार खड़ा करने के लिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2 साल से अधिक हो गए, अभी तक मात्र 21,000 लोगों को 50-50 हजार रुपया दे पाए हैं। अगर वो दिए होते 2-2 लाख रुपया और तो रोजगार किए होते, तो आज वो माँ बहनों को देने की बात जो कह रहा है कि हम चुनाव बाद 2 लाख देंगे, अभी 10,000 दे रहे हैं, वह नौबत नहीं आती। तो उनपे वो विश्वास नहीं है। और जो महिलाओं को 10,000 मिला है, वो उनकी आबादी आपके आधा भी नहीं है महिलाओं को। उसके अलावे जो महिलाओं जिनको बिल्कुल नहीं मिला तो बहुत गुस्से में है, जिनको मिला है वह भी उससे नाराज हैं और कह रही हैं कि अब अगली सरकार जो आने जा रही है 30,000 रुपया महीने देगी 14 जनवरी को। तो इसलिए उनको अब नए सरकार पे विश्वास हो रहा है। भाई डॉक्टर साहब, मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है, मनी इन द बैंक इज इक्वल टू वोट्स इन द ईवीएम। मतलब एक बार बैंक में पैसा आ गया, उसके बाद ईवीएम में वोट आ जाता है, जहां तक मैं जानता हूं। शैलेश पांडे जी से पूछते हैं। शैलेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। शैलेश पांडे जी, एक बड़ी दुखद खबर है, बहुत बुरी खबर है। दिल्ली में पहले उसी पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बिहार पे भी बात कर लेंगे। भाई, मोदी जी ने कहा था आतंकवादी घटना अगर होती है तो टेररिज्म इज इक्वल टू एन एक्ट ऑफ वॉर, ये कहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा हमारी अपेक्षा है, अंदर घुस के मारेंगे, और जो हमारे अंदर आंतरिक दुश्मन जो हैं उनको भी पकड़ पकड़ के छोड़ा नहीं जाएगा। शैलेश पांडे जी, अब आप बोलें। जी बिल्कुल राजीव जी, हम पहले से ही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और इस दौरान ये जो दिल्ली बम विस्फोट हुआ है, सबसे पहले तो मैं इसकी तीव्र कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और जो इसमें शहीद हुए हैं, मृतक हुए हैं, मैं उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार के लोगों को धैर्य ढाढ़स बधाता हूँ। और हम शपथ लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का बदला हम एक के बदले 10 से लेंगे,
और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने मनोगत को, अपने भावना को, अपने दुख को, अपने पीड़ा को, अपने आक्रोश को पूरे जनता के सामने व्यक्त किया है और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और ये सही बात है कि कोई भी आतंकवादी हमला युद्ध माना जाएगा और युद्ध का जवाब युद्ध से दिया जाएगा। मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और मोदी जी सरकार की इंटेलिजेंस ने ये सारी बातें आज से 4-5 दिन पहले पकड़ी गई कि फरीदाबाद में किस प्रकार से 2500 किलो का आरडीएक्स बरामद हुआ, हथियार 2900 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया। जी, तो बरामद मैं किया गया। इसके लिए तो मैं हमारे देश के जो आईबी है, इंटेलिजेंस सर्विस है, उसको मैं बधाई देता हूँ, मोदी सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े तादाद में ये सारी चीजें पकड़ी। आप समझिए कि 2900 किलो जो आरडीएक्स लाया गया, यानी तकरीबन 3 टन। दिल्ली, हरियाणा जी। और जी, दुरुस्त बात है। बोलिए बोलिए सर, बोलिए, डोंट माइंड मी, बोलिए। He's got disconnected. We need to connect him again. We need to connect Shailesh Pandit ji again. He's come back. No, he's not come back. Not come back as yet. BNK, can you throw some light on this? 2.9 tons of RDX? Where the hell do you get 2.9 tons of RDX from? You got to be kidding me, man. I mean, how? 2,900 kilos of RDX? Ammonium nitrate, they say. Revised. Is it RDX or is it ammonium nitrate? I'm not sure. Ammonium nitrate. राजीव जी जी, आ गए वापस आप, बोलिए सर, बोलिए। हाँ। सर, RDX नहीं था, अमोनियम नाइट्रेट था, बोलिए। वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, बोलिए। NH4N था, तो सबसे अमोनियम पहले मैं नाइट्रेट। देश जी, की जो इंटेलिजेंस सेवा है, मैं सर्विसेज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सही समय पे वो जानकारियां मिली, जिसके वजह से ये बहुत बड़ा साजिश था, षड्यंत्र था, देश के कई राज्यों में, कई शहरों में ब्लास्ट करने का। उस योजना को नाकाम करके देश की रक्षा करने का काम हमारी इंटेलिजेंस सेवा ने की है। मैं उनके सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जो ये आतंकवाद का बड़ी गतिविधि, बड़ा षड्यंत्र और बड़ा बम ब्लास्ट और बड़ी कार्रवाई ये करना चाहते थे, उसे हमारी इंटेलिजेंस ने, हमारी सेना ने रोकने का काम किया। सरकार जागृत रही। लेकिन ये जो घटना दिल्ली की हुई, उन सब बड़ी घटनाओं को छुपाने के लिए ये भी एक षड्यंत्र का भाग है। इसमें भी सारे लोग गिरफ्तार हुए। मुझे तो शर्म आती है और ये बात जनता के बीच में चर्चा करने के विषय है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे कि मुस्लिम समाज के हाथों में, एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान होना चाहिए, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। लेकिन आज देश के लोगों के मन में ये प्रश्न है कि ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर उमर, डॉक्टर फलाना, डॉक्टर ढिकाना, और ये डॉक्टर पढ़ लिख के उसके बाद भी ये देश के खिलाफ साजिश किए, आतंक की घटना इन्होंने की, बम ब्लास्ट किया। ये पढ़ाई लिखाई का इनके क्या फायदा? ये तो इनके डॉक्टर के पढ़ाई का इनका उपयोग ये देश के खिलाफ कर रहे, देश के खिलाफ आतंकवाद फैला रहे, बम ब्लास्ट कर रहे। इनके पढ़ाई का मतलब कुछ भी नहीं। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी इनकी जो सोच है वो सोच नहीं बदल रही है। ये जिहादी सोच है। मैं ये देश की जनता जनार्दन करता हूँ, इस जिहादी सोच को कुचलने की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सोच को एनकाउंटर करने की आवश्यकता है। देश की तमाम जनता को जागृत होने की अवस्था है। और अब ये देश के किस भाग में, मेरे पड़ोस में कौन रहता है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कौन है, उस पर भी अब हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें अब प्रत्येक अपने ये जो इनके स्लीपर सेल है, इनके अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर डॉक्टर बम ब्लास्ट करा रहे हैं, ये पहली बार हुआ है सर, पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार। बेचारे अनपढ़ लोग। पांडे जी, ऑपरेशन सिंदूर में जब हो गया था 9 टेरर कैंप को मोदी साहब ने अटैक किया था और करीबन इतने लोग शहीद हो गए थे पांडे जी, जो मसूद अजहर के रिलेटिव्स को मारा गया था। मसूद अजहर के बहन जो बेनोई है यूसुफ अजहर को मारा गया था, जो कंधार ऑपरेशन में चीफ था। यूसुफ अजहर वो पूरे फैमिली को तबाह कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर, और 9 कैंप जो टेरर कैंप डिस्ट्रॉय किए थे, तभी वहां से आवाज उठाया था ऐसे सीरियल ब्लास्ट।
यहां पर करेंगे। बदले में मसूद अजहर फैमिली को आपने जिस प्रकार से डिस्ट्रॉय किया था, उसके बदला लेंगे करके मसूद अजहर ने चिल्ला चिल्ला कर बोला था। कैंप बार बार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, बहावलपुर में कैंप लिए थे, बोले कि बदला लेंगे बदला। तो क्या एक बड़ा आपने ट्रेजेडी रोका। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने इमीडिएटली डॉक्टर को गिरफ्तार किया, सब लोग छूट बच गए थे, सिर्फ डॉक्टर उमर मोहम्मद बचा था, वो आके बम ब्लास्ट कर दिया। आपने बड़ा ट्रेजेडी रोका, पर क्या ये छोटा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है डॉक्टर पांडे जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसीलिए तो बार बार देश के इंटेलिजेंस को मैं धन्यवाद देता हूँ, मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और आज मोदी जी है कि आज 14 सालों के बाद ये पहला ऐसा हुआ कि 2900 किलो आरडीएक्स और ये जो बम विस्फोटक वस्तुएं हैं वो हमारी इंटेलिजेंस ने पकड़ा है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप इसके पहले देखे होंगे, हर महीने ब्लास्ट होते थे, हर महीने सब होते थे। मैं उस पर अभी फिलहाल तो नहीं जाना चाहता हूँ। देश दुनिया को सब कुछ पता है कि कांग्रेस के 7 सालों लेकिन शैलेश पांडे जी, 11,000 से शैलेश ज्यादा पांडे लोग जी, एक सेकंड सर, ये मानते हैं हम लोग, ये मानते हैं, इसमें कोई डिबेट करने की बात नहीं है, सबको मालूम है, ये तथ्य सबके सामने है। मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में भले बिहार हो, भले उत्तर प्रदेश हो, भले दिल्ली हो, मुंबई हो, जितने भी बड़े बड़े शहर हों, सर अगर डॉक्टर्स ऐसा काम कर सकते हैं, डॉक्टर्स, बाप रे, मतलब कि किसको ट्रस्ट करें, किस पर विश्वास करें सर? मतलब ये मैंने सर, आई हैव बीन कवरिंग टेररिज्म सिंस 1982 से कवर कर रहा हूं। 1982 से मैं दिल्ली में था, मुंबई में 1993 में आया हूं, पूरा पंजाब मैंने कवर किया है, जम्मू एंड कश्मीर मैंने कवर किया है। सर पढ़े लिखे लोग ऐसा काम नहीं करते। ये आज तक प्रथा थी कि पढ़े लिखे लोग ऐसा काम नहीं करते। सर ये तो मामला उल्टा ही हो गया। अब तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को, एक तो उनका आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा उनकी ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी, तीसरा 24 घंटे हर एक को सतर्क रहना पड़ेगा। सर ये दिस इज वेरी डेंजरस। ये तो बहुत खतरनाक चीज है जो अभी आपके सामने आई है, हम लोगों के सामने आई है। मैं मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू अलार्म पीपल, मैं लोगों के सामने कोई अलार्मिंग चीज पेश नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज रियली अलार्मिंग सर। अलार्मिंग इसलिए कि डॉक्टर शाहिद के घर में AK-40 गाड़ी में AK-47 मिला। एक लेडी डॉक्टर के घर और यानी गाड़ी में AK-47 मिला। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, वहां उनके पास AK-47 मिला, वो भी लॉकर के अंदर, अपने कॉलेज के लॉकर के अंदर, जो मेडिकल हॉस्पिटल है। तो एक डेंजरस सिचुएशन है। और ये लखनऊ में जहां रहती है डॉक्टर शाहीन शाहिद, वहां किस प्रकार से आप देखते थे। और वो डॉक्टर शाहीन शाहिद को उन्होंने लेडीज जैसे मोहम्मद का पूरा ठेका दिया था पूरे देश में रिक्रूटमेंट करने का। एक कामयाबी, मगर AK-47 इनके पास मिलना डॉक्टरों के पास, पांडे जी, ये सीरियस इश्यू है। देखिए राजीव जी और प्रदीप जी, इस वक्त पूरे देश के अंदर जिहादी ब्रेन वॉशिंग का काम चालू है। अब इन्होंने टारगेट पढ़े लिखे लोगों को ही किया है। मैं आपको बताऊं, 2008 का जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था फर्स्ट क्लास के डब्बों में, मेरे पिताजी उसमें सीरियस इंजर्ड थे। 2.5 महीने वो अस्पताल में एडमिट थे, सायन हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे। कुछ उसमें एक व्यक्ति मीरा रोड के नया नगर से पकड़ा गया था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 2006 की बात कर रहे हैं सर, आप 2006 की बात कर रहे हैं। 2006 बम ब्लास्ट की बात कर रहे हैं। 2006 वेस्टर्न एक्सप्रेस। और उस वक्त देश की जो CID थी, NIA के जो इंस्पेक्टर तो मेरे घर पे आए थे। NIA के इंस्पेक्टर्स मेरे घर पे आए थे। मेरे पिताजी को कुछ संदिग्ध लोग दिखे थे, उनकी स्केचिंग वगैरह भी उन्होंने की थी। और उस वक्त नया नगर से एक व्यक्ति पकड़ा गया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस आतंकवादी घटना के लिए फंडिंग का काम करता था। जी जी। लेकिन सर वो तो सबको छोड़ दिया ना, पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सर अब डॉक्टर। आने वाले समय में कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी मौलाना, ये लोग तो है मौलाना, तो बड़े बड़े इनके आतंकवादी, चाहे जैशे मोहम्मद हो, चाहे लश्कर तोयबा हो, इसके तो सरगना है, सिपह सालार, सेनापति और मुखिया है। तो लेकिन मैं तो देश की जनता से ये अपील करूंगा
कि आपके पड़ोस में कौन रहता है उसकी भी आप तहकीकात तफसील शैलेश कर पांडे ले, जी। उसकी जांच कर ले। let पड़ोसी me go में to कौन रह BNK. रहा है कौन नहीं रह रहा है, हर गतिविधि की सूचना आप अपने नजदीक के लेकिन पुलिस सर स्टेशन में उसमें दें, खतरा बहुत है। सीआईडी को दें, इंटेलिजेंस ब्यूरो को दें, सीबीआई को दें, सबको दें, और सभी देश शैलेश के पांडे जी। प्रत्येक नागरिक को जागरूक रहने की आवश्यकता है। शैलेश पांडे ये जी। जो घटना है, ये घटना बहुत ही लोगों को झंझोड़ने वाली है। लेकिन कि शैलेश आज पांडे जी, that is डॉक्टर the- जिसे that भगवान is का the रूप माना exact जाता है, impact these वो people want. आतंकवादी बन गए। वो लोगों की जान अरे लेने शैलेश में पांडे पैदा जी, हो बात गए। तो दिल्ली में जो सुनिए। बम ब्लास्ट हुआ, किस शैलेश तरह से पांडे लोगों जी, के चिथड़े उड़े, शैलेश कितना पांडे भयावह जी, विभत्स शैलेश पांडे दृश्य जी, था। देखकर शैलेश पांडे जी, एक रोंगटे सेकंड खड़े हो जाते सर, हैं। एक लेकिन सेकंड ये जो सर, जिहादी है, सर, ये एक सेकंड सर। शैलेश पांडे जी, ये घटना इसलिए घटित की गई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं घटी है, जान के घटित की गई है, षड्यंत्र की जान करके ये षड्यंत्र किया गया है। सुनने वाली बात है सर, सुन लीजिए कि 100%। जितने पढ़े लिखे लोग हैं उन पर भी हम लोग शक की निगाह से देखें, ताकि हिंदुस्तान में और भी दरार पड़े, ताकि जितने लोग कश्मीरी, जितने लोग आज की तारीख में भारत के साथ आ गए हैं, उनके ऊपर सख्ती से बर्ताव हो, ताकि वो एक बार फिर भारत विरोधी हो जाएं। ये षड्यंत्र है, याद रख लीजिएगा। तो बहुत बहुत केयरफुली चलना होगा हम लोगों को। बीएन कुमार, दिस इज अ स्टैंडर्ड प्लेबुक of all terrorists. You try and force the government of the day to take the most ruthless, the hardest and most brutal possible action, especially against the educated class. And these guys seem to have succeeded in that. So the government will have to be very, very, very careful. Let's be very clear. You don't want to alienate all those Kashmiri boys and girls who have now come into the mainstream. BNK, please go ahead. आप बताएं, BN कुमार साहब। सबसे पहले तो आई शेयर द फीलिंग दैट इट्स वेरी शॉकिंग, हाईली शॉकिंग इंसिडेंट दैट इज टेकिंग प्लेस। Yes. और अनफॉर्चुनेटली certain political leaders and even couple of TV anchors also have been started talking in terms of jihad, etc. Yes. That's what exactly the obviously the masterminds behind the attack Yes. wanted. Yes. Divide the nation, divide the people, दरार पैदा किया जाए, तो आपस में शक की ये हो, और ताकि एज अ सोसाइटी वी विल नॉट बी रिमेन यूनाइटेड, बट दैट इज देयर डिजाइन। बट फ्रॉम द इंसिडेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, गवर्नमेंट हैज टू टेक एक्शन व्हाट इज रिक्वायर्ड, बट आरकेबी, एज वी हैव बीन डिस्कसिंग सिंस द पुलवामा एंड प्रीवियस अटैक्स आल्सो, अकाउंटेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Yes. इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कैसे गाड़ी आया, कहाँ से आया, जिसको जो गाड़ी कहाँ से उठाई गई थी वहाँ वो पता चला, कितने चेन वो गाड़ी पास होते गया, while the गाड़ी is being sold or transferred, there is an RTO record, all that has to be totally ascertained. And most importantly, I will keep stressing, this is not the time to talk about jihadis, etc., dividing the society, which the terrorists or the masterminds they of want terrorists that, want. yes. Let us fix the responsibility. Accountability is very important while taking action, RKB. Yes. Absolutely. No, but BN, बोलिए सर, ये बीएन कुमार जी, आप नहीं लगते कि यहाँ पर जो सही है उसको हम लोग को हाईलाइट करना पड़ेगा, जो सही है उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। बात यह है कि डॉक्टर मोहम्मद उमर, डॉक्टर शकील, मुजम्मिल शकील, डॉक्टर अदील राथेर, डॉक्टर सज्जाद अहमद जो पुलवामा से पकड़ा गया, डॉक्टर परवेज अंसारी, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर शाहीन शाहिद जिस प्रकार से एक महिला विंग का जमात अल मोमिनात का राइज, एक तो जो स्लीपर सेल जिस प्रकार से एक्टिव है, सच्चाई को सच्चाई बोलने में देश और पूरे समाज को इतराना नहीं चाहिए। You have to call facts to facts. You have to call a spade a spade. If these people have done and the sleeper cells have been active, you need to have the guts to say that these have been done. इनफैक्ट पूरे मुस्लिम समाज को आगे आकर इस चीज को कंडेम करना चाहिए कि हमारे समाज में हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो उसमें छुपाने वाली बात क्या है? Why should we fear to say that? Why should we hesitate to say that? बीएन कुमार जी। Yeah, I'm not saying to trying to defend anybody. My only point is accountability is important. Yes, these kind of professionals have been involved in this kind of terror activities. That is absolutely unfortunate and condemnable, but and also
I am very sure that no right-thinking Indian will ever support these kind of things. They will have to condemn. They will condemn. I think they have been condemning. In fact, if you see yesterday, Mr. Kharge himself said, "Fix the responsibility. Go to the bottom of the case." You know, that's important. But आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज को सामने आके कंडम करना चाहिए? Interrogated the Kasab and found out the masterminds behind the attack. Similarly, मुस्लिम we have to समाज do here also. बीएन कुमार जी, मुस्लिम समाज को ओपनली खुल के सामने आके इस चीज को कंडम करना चाहिए कि दिस इज नॉट एज पर इस्लामिक, जो हमारे कम्युनिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, इनको बाहर निकालना चाहिए समाज से। ऐसे हार्श स्टेप्स लेने की जरूरत है। डोंट यू थिंक द कम्युनिटी हैज टू कम फॉरवर्ड एंड टेक हार्श स्टेप्स? I don't think any right-thinking, whether Muslim, Sikh, Christian community or Hindu, would be supporting these kind of activities. They will have to come out. They will come out. In fact, even during Pulwama, man like Owaisi has spoken so harshly, so determinedly against Even the today, terror attack. even But now. he was part of the delegation that went abroad. Even now, that the even But he government was sent. the first to they do strike the condemn. midnight I'm door. very sure they'll come out now open, as you said. मिडनाइट को I'm sorry, Pradeep. ओवैसी बचाने के लिए, टाइगर मेमन को बचाने के लिए मिडनाइट सुप्रीम कोर्ट का घंटा किसने बजाया था? ओवैसी जी ने बजाए थे। उनको कंडेम करना चाहिए ऐसे Sir, इंसिडेंट्स। Tiger Memon's brother. Yes, Right, yes. Tiger Memon's brother. Tiger Yeah, Memon's Tiger brother. Menon, yeah. Yeah, but Tiger Memon's brother was offered a deal. Anyway, we will not go into that. Maybe Shailesh Pandey ji would like to talk about it at some point of time. He wants to talk it right now. Tiger Memon के जो भाई थे, उनको याकूब मेनन। फुसला करके लाए यहाँ पे। देखिए, राजीव जी। अरे मेरी बात तो राजीव सुन जी। लो सर, मेरी बात सुन लो। उनको जी, जी। फुसला करके यहाँ पर लाए, उनको बोला भैया तुझे छोड़ देंगे, तू आ जा। उसके बाद उससे पूरी इंफॉर्मेशन ले ली और उसके बाद उसको फांसी दे दी। नहीं, उनका सर family उसके बाद को कोई तो आएगा छोड़- ही नहीं। फैमिली को तो छोड़ दिया था ना। नहीं, तो उसको क्यों मारा? सीधी सादी बात है सर। No, The fact is, Shankar Rao Chavanji had a deal with him. Let's No. be very clear. And we reneged on that deal. After that, no other guy has surrendered. Let's be very clear. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शैलेश पांडे जी, सर सामने स्टेटोस्कोप, मेरी बात सुनिए, सामने स्टेटोस्कोप लगा रखी है आपने और पीछे AK-47 है। ये क्या है? हद होती है यार। मतलब कि आप कैसे लोग हैं? डॉक्टर हैं ये लोग। अरे डॉक्टरी पढ़ के आए हो, लोगों को बचाने के लिए, बचाने की कसम ली है तुमने, हिपोक्रेटिक ओथ लिया है तुम लोगों ने, और ऊपर स्टेथोस्कोप लगाते हो, लैब कोट पहनते हो, पीछे AK-47 रखते हो। ये क्या है? अब आप बोलें। बिल्कुल शैलेश सही, पांडे जी, मैं please। आपके बात का समर्थन करता हूँ राजीव जी जी। कि डॉक्टर को आज हमारे सोसाइटी में भगवान से भी बड़ा ओहदा दिया जाता है, लेकिन आज इन्होंने उस भगवान के ओहदे को, डॉक्टर के ओहदे को कलंकित करने का काम किया है, घृणास्पद काम किया है। भगवान ऐसे लोगों को बिल्कुल माफ नहीं कर सकते। ये जल्लाद से भी बदतर है, जल्लाद से भी बदतर है। लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि समाज में लोगों को आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए, मैं उस पर एक बहुत ही कठोर शब्दों में मैं प्रहार करना चाहता हूं। जी। आज मैं किस मुंह से ये समाज से मैं ये चाहत रख सकता हूं या रखूं जो समाज याकूब मेनन को, एक आतंकवादी को फांसी मिलने के बाद 20,000 की संख्या में उसके अंतिम संस्कार में, उसके जनाजे के पीछे कब्रिस्तान में जाता है। कैसे मैं उनसे ये कोई भी एक्सपेक्टेशन रख सकता हूं? कैसे? और आज हम बात कर रहे हैं कि समाज में ये जो आतंकवादी है वो षड्यंत्र कर रहे हैं देश को तोड़ने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए। अरे कौन लड़ा रहा है? मैं तो ये पूछता हूं, अगर ये डॉक्टर तैयार ना होते आतंकवादी बनने के लिए तो कोई माई कालाल इनको नहीं आतंकवादी बना दुरुस्त सकता बात। था। लेकिन ये खुद तैयार हुए, Yes. ये खुद तैयार हुए। टाइगर Correct. मेनन, याकूब मेनन खुद आतंकवादी बने, बम विस्फोट कराए। ये जो आप यहाँ पे नाम ले रहे हैं इतने सारे, डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर शकील, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर उमर मोहम्मद, और वो और वो जो लेडी है डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर ये शाहीन। ये अगर नहीं चाहे होते तो जी। क्या ये आतंकवादी बनते? ये कौन है? हिंदुस्तान की खाकर, हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट कराना, हिंदुस्तान को उजाड़ने की ये सोच जो है, इसी सोच को मैं जिहादी सोच कहता हूं, इसी सोच को मैं गजवाए हिंद की सोच कहता हूं, इसी सोच को मैं देशद्रोही सोच कहता हूं। और ये सोच पनपाई जा रही हिंदुस्तान में। तो मैं आपसे एक पूरे सवाल पूछ लूं? प्लानिंग के साथ, षड्यंत्र के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ। तो आपसे एक सवाल पूछ लूं, सर? स्लीपर से लो। सर, एक आपसे सवाल पूछ लूं? जिहादी मानसिकता सर! की आवश्यकता है। सर आपसे सवाल पूछ लूं? जी पूछिए। तो ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होगा
तो 1.5 या 2 दिन के अंदर आप सीज फायर नहीं करेंगे, पूरा करेंगे। इस बार भी पूरे देश में हर एक को यह पूछ रहा था कि इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया यार, 2 या 3 दिन और लड़ते। रावलपिंडी का जो HQ है आर्मी हेडक्वार्टर्स, उसको उड़ाइए। और मैं आपको बता रहा हूं सर, आई हैव एनालाइज्ड पाकिस्तान इन द लास्ट 43 ईयर्स, 43 साल में पाकिस्तान की बहुत स्टडी है मेरे पास। जब तक रावलपिंडी में आप कफन नहीं बांटेंगे, जब तक वहां पर कब्रें नहीं खुदेंगी आर्मी HQ रावलपिंडी में, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये लोगों को मार दो, कुछ कर दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जब जर्नल जो हैं, उनके जब सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, कर्नल से लेकर के जनरल तक, जब तक उनके ऊपर गाज नहीं गिरेगी कुछ नहीं होगा। शैलेश पांडे जी, पिछली बार भी हम लोग बहुत जल्दी रुक गए, 2 या 3 दिन और बढ़ाना चाहिए था। अब आप बोले सर, प्लीज बोलिए। नूर खान देखिए, बेस, पांडे जी आप मालूम पड़ा है कि नूर खान बेस जो है, नूर खान बेस को बोलने दो ना। से बात किया और जो युद्ध नियम है, युद्ध नियम के अंतर्गत वो सीज फायर हुआ था। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मोदी जी ने जो आक्रोश जनता के सामने, देश के जनता के सामने व्यक्त किया है, मोदी जी अब रुकने वाले नहीं है। मोदी जी इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। POK हमारे देश का अभिन्न अंग है। भले कितना बाहरी षड्यंत्र हो जाए, भले ही हमारे ही जयचंद अब यहाँ पर बन जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रदीप जी सवाल पूछ रहे हैं। पांडे जी सुनिए, आज नया वॉरफेयर हो गया। ये जो डॉक्टर पकड़े गए पांडे जी, ये जो नया डॉक्टर जो पकड़े गए, ये चाइना से सीख के आया है मॉडर्न वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर। राइसिन जैसे पॉइजन गैस के माध्यम से टेरर अटैक करने के लिए जो एक अनिल राठौर है, जो चाइना से ये सब सीख के आया है। क्या नया जो आतंकवाद हमला होने वाला है, उसको केमिकल वॉरफेयर भी हो सकता है, जो अभी पूरे डिटेल्स निकल के आ रहा है। तो क्या इसके लिए तैयारी होना नहीं चाहिए देश में? बिकॉज इससे पहले पॉइजन गैस से पहले अटैक नहीं हुआ नहीं था। अभी देखिए, कुछ आप ये जो विषय बता रहे हैं, इस विषय के साथ साथ कुछ दिनों पहले अभी 4 लोग गिरफ्तार हुए जो पानी के अंदर जहर फैलाने का, उसमें जो धतूरा होता है और अलग अलग प्रकार के जो पानी में मिक्स करने पर पता नहीं चलता कि ये जहर है। इस प्रकार मंदिर में जो प्रसाद बांटे जाते हैं, उस प्रसाद में, उस पानी में जहर मिलाकर लोगों को मारने का षड्यंत्र का एक बड़ा ही षड्यंत्र खुलासा हुआ और वो लोग जेल में हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकार के अनेक षड्यंत्र इस वक्त देश के अंदर ये जिहादी ताकतें कर रही हैं। जिहादी ताकतें हो, वो देश के अंतर्गत हो या विदेशी ताकतें हो, ये पूरा दुनिया और विशेष तौर से जिहादी ताकतें हैं, जो आतंकवादी ताकतें हैं, वो इस देश को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। आपको मालूम है ना राइसिन क्या है? सर आपको मालूम है ना राइसिन क्या होता है? बने, भारत विश्व गुरु बने, इसलिए शैलेश पांडे जी, विशेष तौर से अब हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। शैलेश पांडे जी, राइसिन किया जा रहा है। राइसिन का इफेक्ट क्या होता है मालूम है? पानी में जहर मिलाकर लोगों को मारने की साजिश की जा रही है। इसके पहले भी हुआ है था जो हिंदू पेशे, सर मैं आपको बताऊं, नपुंसक बनाने, अरे सर मैं आपको बताऊं, एक घटना बताऊं, सुनिए। दोषी था, अरे सुनिए 1965 की लड़ाई में मैं बहुत छोटा था, तो बचपन की बात है, आई थिंक आई वाज इन द नर्सरी। लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ा उसी स्कूल में, दिल्ली के भारतीय विद्या भवन स्कूल में, कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है भारतीय विद्या भवन, वहां जो हमारी हेडगर्ल थी वो एक कर्नल साहब की बेटी हुआ करती थी। वो जब बस से उतरी दिल्ली कंटोनमेंट में, वहां उनको 2-3 महिलाएं मिली और वो पूछ रही थी कि पानी की टंकी कहां है। उस लड़की ने बोला कि हाँ मैं तुमको दिखाती हूं, चलो। शी वाज आई थिंक इन द 11th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम एंड शी टुक देम स्ट्रेट टू द क्वार्टर मास्टर ऑफिस। वहां पर सारे आर्मी के लोग थे, उन्होंने उनको पकड़ लिया और वो जहर लेकर के आए थे कि ताकि पूरे कंटोनमेंट की वाटर सप्लाई कंटेमिनेट हो जाए, मर जाए लोग वहां पे। 1965 की बात है ये। आई थिंक हर नेम वाज मीना पारेख और समथिंग लाइक दैट वाज हर नेम। हमारी हेडगर्ल हुआ करती थी वो, और उसको अवार्ड भी दिया गया था बाद में, भारत सरकार ने अवार्ड भी दिया था उसको ब्रेवरी का। सर ये इनकी बड़ी पुरानी साजिश है। आपको मालूम है राइसिन, सर 500 ग्राम्स ऑफ राइसिन इज इनफ टू किल 5 लाख पीपल। 5 लाख लोग मर सकते हैं अगर उसको वाटर सप्लाई में डाल दिया किसी ने।
ये चीज याद रख लीजिए सर। तो अभी वॉरफेयर चेंज हो गया है, और मेरा तो ये कहना है सर, बीएनके may not agree with me, प्रदीप जी may not agree with me, I think शैलेश पांडे जी will agree with me। सर ऐसा है, इस बार ऐसा जवाब जाना चाहिए, इस बार ऐसा जवाब जाना चाहिए कि अगले 10 साल तक ये लोग उठ ना पाए। ये मैं आपको बता रहा हूं, नहीं करेंगे तो बार बार ये होता रहेगा। शैलेश पांडे जी प्लीज। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, और हमें अब इजराइल के स्टाइल में पाकिस्तान और आतंकवादियों को जवाब देना पड़ेगा। उससे ज्यादा, इनकी कमर तोड़नी उससे पड़ेगी, ज्यादा पीओके को हमें लेना पड़ेगा। जी। और बिल्कुल 10 साल नहीं, मैं तो चाहूंगा 50 साल ये लोग नहीं खड़े। ये तो वैसे भी पाकिस्तान भिखमंगा देश है, कटोरा लेके अमेरिका के पीछे, चाइना के पीछे घूमते रहता है, और ये तो खेल विदेशी ताकतें भी खेल रही हैं, ये जग जाहिर है, दुनिया जानती है। लेकिन हमें तो तकलीफ अपनों से होती है, गैरों में कहाँ दम था जो हमें लूटते। ये तो अपने ये ही हालत है कि हमें तो अपनों से धोखा हमेशा से मिलता जी, आ रहा है। ये तो अपनों ने ही मारा हमें। ये देश के जनता बीएन कुमार जी, आहत हुआ है वो अपनों के कारण। और दुरुस्त बात है सर, दुरुस्त बात है, बट जागने का वक्त है अभी, बीएन and we have to be very smart। बीएन कुमार जी, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, पाकिस्तानी हो, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये एस्टैब्लिश हो चुका कि नूर खान एयरबेस है, जकोबाबाद एयरबेस है, और पासनी एयरबेस में यूएस पूरे उस हवाई अड्डा उनके काबू में है। जब हमने नूर खान बेस पर अटैक किया था, उसके बाद ट्रंप ने इनिशिएट किया था कि जल्दी आप लोग पैचअप कर लो, बिकॉज नूर खान एयरबेस यूएस कंट्रोल में था। जकोबाबाद एयरबेस जो है, शाहबाज एयरबेस, वो यूएस कंट्रोल में था। पासनी एयरबेस यूएस कंट्रोल में था, और हमारे ब्रह्मोस जाके वहां पर गिरे। उसके बाद यूएस से आया था कि भाई पैचअप कर लो, यानी पूरे प्रेसिडेंट के ऑफिस से ये आया। तो किस प्रकार से देखते हो, क्या जो हमारे आर्म फोर्सेस कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान हमारे राइडर में है, कितना सच्चाई है? हाउ डू यू थिंक बीएन कुमार जी? That was true. In fact, that is actually America also got a little panicky कि कहीं उनका पोल खुल जाए। और one thing that in the current situation, Mr. Modi also has to take the entire global community also into confidence while taking any action, and then so that कोई भारत के खिलाफ आवाज उठे बाहर के सर, उठती हुई तो उठने दो। as in fact we should learn lesson from Pakistan. We may not like what they have done, but what they had done was they have united. I mean, they held meetings with local diplomats in Islamabad, and similar kind of initiative, diplomatic initiative, must come from the Modi government, and they should take the world community into confidence and definitely unite. I mean, gain their support so that भारत खिलाफ कोई कहीं से भी कोई भी आवाज ना उठे, और specifically the finger suspicion, need of suspicion towards Pakistan. Pakistan has to be condemned. BNK, that's Pakistan has to be condemned by the global community. Yeah, it will not be done. BNK क्या है, मैं आपको एक छोटी सी बात आपको सामने रखता हूँ। ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी बीएन कुमार साहब, शैलेश पांडे जी, शायद आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन आप समझ जरूर जाएंगे। सर, इंडिया is huge. Sir, India is the 4th largest economy in the world. By next year, we would have overtaken Germany. We will be the 3rd largest economy in the world. कौन हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहेगा? सर आप मुझे बताइए, हमारे दोस्त भी ईर्ष्या करते हैं हमसे। क्या बोल रहे हैं सर आप? हिंदुस्तान को अकेले खड़े होने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये पाकिस्तानियों का जो है ना, 8 राफेल गिरा दिए, 9 राफेल, वो एक कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, उसने बहुत बढ़िया बात कही। बाय द वे, आई एम टेलिंग यू नाउ ऑफिशियली, आई हैव कवर्ड डिफेंस ऑल माय लाइफ, वी डिड नॉट लूज अ सिंगल राफेल। लेट मी टेल यू दिस, एक राफेल जहाज भी हम लोगों का नहीं गिरा, नॉट वन। लेकिन जो उस लड़के ने बात कही, वो स्टैंड अप कॉमेडी करता है बॉम्बे में ही, और बॉम्बे बॉलीवुड में राइटर है। उसने कहा यार तुम एक गिराओ, 20 गिराओ, हम 50 और खरीद लेंगे। कौन सा हमें IMF के पास जाना है लोन लेने के लिए कि यार हमें हवाई जहाज खरीदना है? क्या बात कर रहे हो सर? लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट with the international community, but as far as the international community is concerned, let's not get our hopes very high. They will do whatever it is to bring India down. भारत को नीचे लाने के लिए हर एक कोई कोशिश करेगा। सर ये क्लियर कट संकेत होता है जब आप सक्सीड कर रहे हैं। BNK, you have experienced it yourself in your life. Yes. जब आप सफल हो रहे हैं,
लाइक फॉर एग्जांपल जो एनवायरनमेंट के ऊपर आपने इतनी जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी हैं, कितना क्रिटिसिज्म आया है आपका, अरे कौन अप्रिशिएट करता है यार, कोई प्रशंसा करता है क्या? कोई नहीं। आपके दोस्त ही सबसे पहले आकर के आपकी टांग खींचते हैं, वही भारत के साथ हो रहा है। लेट्स बी वेरी क्लियर, वी आर अलोन, इंडिया इज अलोन, maybe Israel is with us. In fact, there are only two countries which are fighting Islamic terror in this way. One is Israel, the other is India. For example, लोग भूल जाते हैं कि इजराइल ने जो गाजा पे अटैक किया वो अक्टूबर 7 की वजह से किया। आतंकवाद और इस्लामिक चरमपंथी से तकलीफ में है। जी। आज स्पेन ले ले, लंदन ले ले, आज कितने सभी लोग वहां पर लोग रास्ते पे उतर रहे हैं, लाखों की संख्या में। तो वो यहाँ नहीं होना चाहिए ना सर, वो यहाँ नहीं होना चाहिए, वो इस्लाम का विरोध कर रहे हैं सर, वो यहाँ नहीं होना चाहिए ना। मैं सीधी बात आपको बोल रहा हूँ, नहीं, जहां क्या तक है? भारत का क्या प्रश्न ये है, जो जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं, इन लोगों ने जो माहौल बना दिया है, जो त्रासदी बना दिया है। जी। अब देखिए, हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है। जिस प्रकार से लैंड जिहाद, जिस प्रकार से लव जिहाद, जिस प्रकार से वोट जिहाद और जिस अब प्रकार से केमिकल आतंकी जिहाद। गतिविधियां यहाँ पर चल रही हैं, आज भेदभाव की भावना बढ़ रही है। जिस प्रकार से ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं को जनसंख्या कम करने की साजिश कर रहे हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं, धर्मांतरण, हिंदुओं का धर्मांतरण तो आप भी आज करो, दोनों तरफ से हो रहा है। उससे आज कोई जिस प्रॉब्लम नहीं है प्रकार सर। से हिंदुओं के खिलाफ यहाँ पर देश में ये इस्लामिक ताकतें हो या विदेशी ताकतें जो षड्यंत्र कर रही हैं, तो आप भी आज करो। गृह युद्ध की ओर देश को धकेलने का काम हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि देश के हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। इसीलिए मोदी सर, जी सबको योगी एकजुट कहते होना हैं, पड़ेगा। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, सारे हिंदुस्तानियों को, और आज जिस सारे तरह का भारतीयों ये को, सर, I don't agree with बाहरी you। ताकतें तो हमारे पे हमला कर ही रही है, सर, सारे लेकिन भारतीयों को ये जो इकट्ठा देश होना के पड़ेगा। अंदर जो गद्दार है, पांडे जी, जैसे मौलाना ये इस्ताक, ये मौलाना आप इस्ताक, बातें सुनिए करते सुनिए हैं, पांडे जी हिंदू सुनिए, मुद्दे भी मौलाना बहुत मौलाना इन- इस्ताक इनसे को गिरफ्तार लड़ना कर लिया। पड़ेगा। एक इसके नया बाद तो नया लड़ना एक इनसे। मौलाना इस्ताक को गिरफ्तार कर लिया। वो घर मालिक थे मौलाना इस्ताक, जिसमें 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। उन्होंने भाड़े पर दिया था डॉक्टर मोहम्मद उमर को, उमर मोहम्मद को, डॉक्टर ये मौलाना इस्ताक ने। तो क्या एक नया चीज हम देख रहे हैं जिसमें मौलाना जैसे कम्युनिटी लीडर ऐसे चीज में इन्वॉल्व है? क्या हम लोग मान सकते हैं कि घर में 2900 किलो या 3000 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट आ रहा है और मालिक को पता नहीं है? ये कभी हो सकता है, भले इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बट क्राइम, टेररिज्म और इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी लीडर्स, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है इस देश के लिए। अब बोलिए पांडे जी। देखिए प्रदीप जी, आप इन मौलानाओं से कोई उम्मीद मत करिए। अरे आप देखो, इतिहास उठाकर देखो, जितने भी देश के अंदर और दुनिया के अंदर आतंकवादी संगठनें हैं, उनका मुखिया कौन है? ये मौलाना ही तो हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि ये चरमपंथ बंद होना चाहिए, ये जिहादीपन बंद होना चाहिए, ये इनकी जिहादियों की जो शिक्षा है ये बंद होनी चाहिए। लोगों को लोकतंत्र, संविधान और जो सनातनी शिक्षा है वो देने की आवश्यकता है। इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है देश में ये जो, और खास तौर से ये आतंकवाद पनपाने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए जो मौलानाओं ने मदरसे खोल रखे हैं, इनकी सबकी तफ्तीश की जानी चाहिए, जांच किया जाना चाहिए और ये बंद किए जाने चाहिए। देश में एक शिक्षा नीति होनी चाहिए। देश में जब एक संविधान है तो एक शिक्षा नीति होनी चाहिए। आज देश में जहां भी आप देखेंगे किस प्रकार से हिंदुओं पर दमन हो रहा है, किस प्रकार से जो भी सर, सब पर हो कांग्रेस रहा के है। 60 साल में इन्होंने जब नियम कानून बनाए, वक्फ बोर्ड अच्छा, बना एक छोटी दिया, सी चीज। मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दिया और हिंदुओं के मंदिरों सर, को एक कब्जा छोटी कर सी दिया। चीज। हिंदुओं के मंदिरों को हिंदू नहीं मिल सकते। हिंदू टैक्स देता है। हिंदुओं के मंदिर, मठ जो बड़े बड़े हैं, 100 करोड़, 500 करोड़, 10 हजार करोड़ रुपया जो आता है, वो उस पे सरकार का अधिग्रहण है। ये कांग्रेस ने नियम लाया और उस पैसे तो से चेंज करिए। मदरसों को फंड जाता है, मस्जिदों को फंड जाता है। और कांग्रेस की जहां भी सरकारें हैं, वहां तो ये लोग रिजर्वेशन 5% मुसलमानों के लिए ला रहे हैं। वहां पर ये 4% मुस्लिम ठेकेदारों सर, को गुजरात में भी रिजर्वेशन दे रहे हैं। है। हिंदुओं के टैक्स, हिंदू मंदिरों, मठों के टैक्स, तो के लॉ पैसे चेंज से करो। ये जिहादियों पर खर्च कर रहे हैं। तो ये सर, बंद कानून होना चाहिए चेंज देश कीजिए के ना। अंदर। कठोर कानून सर, लाने की 11 साल से आवश्यकता आपकी सरकार है। धर्मांतरण के खिलाफ, लैंड जिहाद के खिलाफ, वोट जिहाद के खिलाफ। सर, आपकी सरकार है 11 साल से।
मैं मेरी सरकार को भी अपील करता हूँ, ये मेरा ये चेंज अप्रोच करिए है। ना। भले मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता सर, हूं, सिर्फ लेकिन अकेले मैं आप नहीं है, मैं भी हूं आपके साथ मैं इसमें। हिंदू हित की बात करूंगा, मैं हिंदू हित के डंके की चोट पे बात करूंगा। सर, और मेरी मंदिरों सरकार को- समझ रही है, मेरी सर, सरकार ने मंदिरों तमाम को- डिसीजन उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन किया गया। अरे वेरी गुड, इसीलिए लेकिन एक बहुत तो सारे बताइए। कायदों में बदलाव किए अरे जा रहे शैलेश जी, हैं। कभी और सुन भी आने लिया वाले करो। समय में भी बहुत सारी चीजें वाह देखने जी को वाह, बल्ले बल्ले। मिलेंगी। अब हम मुझे देख गाना रहे गाना हैं, पड़ेगा क्या? बागेश्वर सर, धाम सीटी बजाऊं? सरकार ने जब हिंदू राष्ट्र सर, बनाने मैं के लिए, सीटी बजाऊं? भूमि की सर, स्वतंत्रता आपको के लिए, रोकने के लिए यमुना की सीटी बजाऊं? स्वतंत्रता के मैं लिए, बीएन कुमार जी हिंदू की धर्म एक मिनट, के बीएन कुमार जी को के जब पास वो जाने के पहले, पदयात्रा निकाले, अरे एक सेकंड लाखों सर। की संख्या में हिंदू अरे समाज शैलेश उनके पांडे पदयात्रा जी, में शामिल हो रहे हैं। ये पंडित जी, हिंदुओं का पंडित जी, पंडित जी, आक्रोश हर हर महादेव, एक यहाँ पर मिनट। रास्ते पर उतरी हुई है सरकार भी अरे इस बात बाप ध्यान रे में बाप, रखेगी। सर आप तो बिना ब्रेक के चल रहे हैं, रुको तो सही। बोलिए, आप मुझे ये बताइए। तो मुझे मेरी पूरी बातें वह बोलने सर, दीजिए, मेरी बात तो मुझे सुन मेरा लीजिए, आपकी आक्रोश पूरी बात ऐसे आ गई। हिंदू व्यक्त करने दीजिए। आप इसको राजीव वापस जी, सुनना, आप इस शो को वापस सुनना। सर, आप रिपीट कर रहे थे अपने आप को, इसलिए रोका मैंने। मेरी बात सुनिए, आपके साथ मैं पूरी तरह सहमत हूं। हर धार्मिक संस्था के लिए कानून एक होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल जो मुस्लिम दरगाह हैं, मुस्लिम ट्रस्ट हैं, जो मस्जिद हैं, चर्च जो हैं, गुरुद्वारे जो हैं, उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, तो किसी मंदिर के ऊपर क्यों है? सीधी बात है। मैं ये कहता हूं, हटाइए। जो बाकी सबके ऊपर है वो हमारे ऊपर भी होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो बहुत बड़ी चीज है सर, मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, आपको हमारी फौज पर गर्व है सर? गर्व है बिल्कुल ना? गर्व है। सबको है, बीएन कुमार साहब को भी है, प्रदीप जी को भी है, मुझको भी है, हमारे सारे। रेजांग ला, मेजर शैतान सिंह, 120 अहीर, 114 मर गए उसमें, और न जाने कितने हजारों चीनियों को हम लोगों ने मार दिया, लेकिन रेजांग ला आज तक भारत के कब्जे में है 1962 की लड़ाई में, क्योंकि मेजर शैतान सिंह वहां पर खड़े रहे अपने अहीरों के साथ। 13th कुमाऊं रेजिमेंट थी सर वो, ठीक है सर। सर आप जानना चाहेंगे, उनकी जो फैमिली है ना मेजर शैतान सिंह की, अभी तक उनकी पेंशन के लिए लड़ रही है। उनको जो पेंशन मिलनी चाहिए थी ना, अभी तक नहीं मिली है। जो उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिला है। लास्ट वो केस की हियरिंग थी 2015 में, उसके बाद ट्राइब्यूनल में उसकी हियरिंग ही नहीं हुई। मेजर शैतान सिंह की पत्नी स्वर्गवासी हो गई, उनके बेटे लड़ रहे थे कि मेरे पिताजी को जो प्रॉमिस किया गया था, ये भी नहीं कि एक्स्ट्रा दे दीजिए, सर वो भी नहीं मिला है। शैलेश पांडे जी, क्या है ये? मोदी जी की सरकार है सर। हम तो ये अपेक्षा रखते हैं कि मोदी जी से कि मेजर शैतान सिंह हमारे हीरो सर, उनके परिवार के साथ ऐसा अन्याय कैसे? अब आप बताएं सर, शैलेश जी। नहीं, आपने जो विषय रखा है एकदम वो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सेना के जवान देश के लिए अपनी जान कुर्बान सर, करते किसी हैं, क्लर्क ने वो रोक हमारे ली लिए पूज्य पेंशन। हैं, देवतुल्य हैं, जी। और उनको हर तरह से न्याय मिलना चाहिए। उनको पेंशन भी मिलना चाहिए, और उनके परिवार का पूरा सुरक्षा होना चाहिए। उनके परिवार के लोगों को नौकरियां दी जानी चाहिए, और सरकार इस विषय में सही निर्णय जल्द से जल्द लेगी, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। और मैं तो सर कहां ली चाहूंगा सर, कि 11 साल से तो नहीं आपके लिया। संबंध सभी से बहुत अच्छे हैं, सरकार के बड़े से बड़े मंत्रियों के सर, मैं साथ लिख आपके चुका हूं संबंध है। सर। आप भी अपने स्तर सर, पर इस कोशिश विषय कर रहा हूं को सर। पांडे जी, क्या But this is तुष्टिकरण- जगह पर सर, ये रखूंगा। दिल तोड़ने वाली और बात है ये मेरी। काम तुष्टिकरण ऐसे के राजनीति सभी जो लोग हो रहा है, कोशिश हमने करेंगे। देखा बिहार में हो, अलग अलग जगह पे हो, आरएसएस पे पाबंदी लाने वाली बात हो, कर्नाटक में करगे साहब करने का, आरएसएस को बैन करो, तेजस्वी यादव जी कहना है कि उस चीज को कचरे के डब्बे में फेंक देंगे, वक्फ बिल को। तो क्या ये तुष्टिकरण के राजनीति भी, जो हम लोग कहते हैं कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है इस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा देना, या किस प्रकार से, क्या लिंक कुछ है? आपको लग रहा है कि तुष्टिकरण एक लिंक है बढ़ावा में? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल लिंक है प्रदीप जी, क्योंकि कांग्रेस का और एनडीए अलायंस की जो पार्टियां हैं, आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। मैं बार बार आपके चैनल पे और सभी चैनलों पे एक बात जरूर कहा हूं कि कांग्रेस में वैचारिक विचारों का परिवर्तन सोनिया गांधी के कांग्रेस के राजनीति में नेतृत्व करने के बाद से आया है, और वो अर्बन नक्सल में बदल गया राहुल गांधी के नेतृत्व करने के बाद। इस वक्त कांग्रेस की विचारधारा को तिलांजलि देकर अर्बन नक्सल
और देशद्रोह की विचारधारा पे चलने का पूरा काम कर रही है। 100% मुस्लिम तुष्टीकरण करने का काम कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेड्डी खुलेआम बोल रहे हैं, खुलेआम मंच से बोल रहे हैं, कांग्रेस ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस है। दहाड़ के बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। ये तो वो स्वीकार कर रहे हैं ना, तो इस पे चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वो तो खुद ही कह रहे हैं। और रही बात तुष्टीकरण की, तो तुष्टीकरण के लिए ही तो इन्होंने जो हिंदुओं के मंदिर मठ थे उस पर रोक लगा दी, और जो शिक्षा नीति थी उस पर रोक लगा दी। आज हिंदुओं की भगवत गीता रामायण स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा सकती, लेकिन हर मदरसे में आप कुरान पढ़ा सकते हो। ये भेदभाव वाली शिक्षा नीति कौन लाया? कांग्रेस ने लाया। किसके लिए लाया? मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए लाया। और उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। किसके लिए बनाया? मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बनाया। वक्फ बोर्ड लाया। तमिलनाडु में 500 साल पुराने मंदिरों पर सरकारी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैज नो अथॉरिटी। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लाया। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण करते करते ये आतंकवादी तुष्टीकरण करने लगेंगे, ये नहीं सोचा था देश ने। आज कांग्रेस पार्टी ये आतंकवादी तुष्टीकरण करने वाली पार्टी हो गई है। जिस प्रकार से आज प्रियांक खरगे ने आरएसएस को बैन करने की बात कर्नाटक में कहा, ये देशद्रोह भरी बात है, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है देशभक्त एक संगठन है। इस देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा से, समाज सेवा की विचारधारा से छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, राजमाता अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद, स्वातंत्र वीर सावरकर की विचारधारा को आत्मसात करके उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, सेवा का काम किया है। सावरकर का नाम नहीं ले तो अच्छा है। संगठन है देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, उद्योगपति हो, हर वर्ग के, हर समाज के लोगों के लिए दिन रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रही है। आज देश के अंदर हिंदुओं का धर्मांतरण करने के, लेकिन अभी तक सवाल रहता है सर, साथ कौन दे रहा है? तो कांग्रेस साथ दे रही है सर। रहता है सवाल एक, तो वो कांग्रेस दे रही है। सर हमारा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, एक होता है स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक स्टेट का इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, और एक सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है। उसके अलावा RNAW है। उसके अलावा 3 और अलग इंटेलिजेंस एजेंसी है। एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एजेंसी है हमारी, एलिंट जिसको कहा जाता है, और एक सैटेलाइट के जरिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। सर अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट के मुताबिक हमें इंटेलिजेंस गैदरिंग का और इंटेलिजेंस पर्सनल के ऊपर हमारा बजट जो है, एंड इट इज ऑफ बजट एनीवे, आपके बजट में तो आता नहीं है वो, उसको 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा, मिनिमम 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा सर प्लीज। इसमें वो कोई कोताही ना बरतिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यू मस्ट डू इट, अदरवाइज वी आर लुकिंग एट अ मेजर कैटास्ट्रोफी सर, वी आर लुकिंग एट डिजास्टर। बोलिए सर प्लीज। राजू जी, आप एकदम वाजिब बात कर रहे हैं, और मैं आपको आश्वासित करता हूं, आपके चैनल पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पहले कांग्रेस के समय में जो देश का रक्षा बजट होता था वो काफी कम होता था, आज उस रक्षा बजट को हमने कई गुना बढ़ाया है। आज हम रक्षा में इतने मजबूत हुए हैं कि पहले हम छोटे छोटे जो जहाजी पुर्जे थे ना, वो भी हम विदेशों से लेते थे, लेकिन आज हम तेजस बना रहे हैं। आज हम सारी हम बना रहे हैं, सारी तोप हम बना रहे हैं। आज विराट, विक्रांत, ये सारी चीजें हम बना रहे हैं, और आज हम एक्सपोर्टर हो गए। आज देखिए, आप ये बात शांति से समझिए, आज दुनिया के जो सुपर पावर है वो हमारे, आप जो बोल रहे थे ना कि हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, तो क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? इसीलिए कि हिंदुस्तान आज अपने पैर पर खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आज आत्मनिर्भर हो गया है रक्षा में। आप राइट विंग एक्टिविज्म कब रोकोगे? ये लोगों का कहना है, हर पार्टी का। अमित साटम जब कहता है, अमित साटम मुंबई का अध्यक्ष जब कह रहा है कि खान नहीं बनेगा मेयर ऑफ BMC, तो क्या ये किस प्रकार से आप बात करोगे? खान बनेगा नहीं BMC का मेयर,
काम बनेगा नहीं। बीएमसी का मेयर शैलेश पांडे जी राइट विंग एक्टिविज्म कह रहे हैं। अमित साटम जी कह रहे हैं कि कोई खान मुंबई का मेयर नहीं बन सकता। तो क्या आप राइट विंग एक्टिविज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे, हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं दे रहे, मुस्लिम समाज को आप दबोचना चाहते हो जब आप कहते हो कि खान नहीं बनेगा मुंबई का मेयर? किस लिए पांडे जी राइट विंग एक्टिविज्म, किस लिए एक्टिविज्म, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की विचारधारा पे काम करने वाली पार्टी है। हम देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ है और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू महापौर ही बनना चाहिए, ये हमारी स्पष्ट भूमिका है। इसमें सर कोई तो भी कौन गलत बन भूमिका रहा नहीं है? है। आज तक कोई हुआ है क्या? बहुसंख्यकों के हित को हम हटाकर सर आज तक कोई हुआ है क्या? अमित साटम बोलता क्यों है ऐसे? अरे ये मुंबई करो की आवाज है, मुंबई करो की अमित आवाज है, साटम को मुंबई करने आवाज कहां है। बोल दे कि आप इस तरफ से बात करें कि महापौर खान नहीं बनना बनेगा चाहिए, मेयर? तो बहुसंख्यक हिंदू को ही महापौर भारतीय जनता पार्टी सर बनाएगी। कौन बना रहा है? नहीं, मगर बोलना क्यों है? आप ऐसे विश्व जो पॉइजन है उस पॉइजन को समाज में क्यों फैला रहे हो? अमित साटम जी को किसने अथॉरिटी दिया कि आप पूरे मुंबई करो की तरफ से बोलो कि खान नहीं बनेगा मेयर? पांडे जी, प्रदीप ये बताइए, पांडे ये जी, जो रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो कह सकते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है कांग्रेस। सर, वो तो कांग्रेस है ना। मुसलमानों की पार्टी वो तो है। कांग्रेस से आज पूछेंगे। मुसलमानों को इतना लल्लू लप्पो कर सकते हैं। सर, वो कांग्रेस से मुसलमानों के पूछेंगे लिए ना, ये तो वो आपसे भाई पूछना पड़ेगा। तुष्टिकरण के लिए मुसलमानों को वो सर पर बिठा रहे हैं। जब वो कांग्रेस की पार्टी हो गई है तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी फिर हिंदुओं की है, तो इसमें बुराई क्या है? और लेकिन सर, इसके कौन साथ खान हम बन रहा है? हिंदुओं के हित के कोई साथ बन रहा है साथ क्या? हम सभी का हित करते। मुझे आप बताइए, मैं आपकी चैनल के माध्यम से देश के समस्त सभी समाज से पूछता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो मुंबई में अटल सेतु बनाए, जो कोस्टल रोड बनाए, जी। जो सीमेंट के रोड बनाए, जो विकास के काम किए, जो फ्लाईओवर बनाए, जो गार्डन बनाए, जो स्कूल बनाए, जो हॉस्पिटल बनाए, क्या उसके अंदर मुसलमान भाई बहन नहीं जाते? क्या उस हॉस्पिटल में मुसलमान भाई बहन तो इलाज खान नहीं कहां से कराते? आ गया? उसमें उनके बच्चे नहीं तो पढ़ते फिर क्या? खान कहां क्या से उस आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मेयर? का उपयोग वो नहीं करते क्या मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का पैसा मुस्लिम बहनें नहीं लेती हैं क्या किसान सम्मान तो निधि का पैसा सर, मुसलमान समाज नहीं लेता है क्या? लेते हैं ना। तो सब अमित फायदा साटम उठाते कहां हैं, से बोल सारा रहे हैं पैसा ये? आप लेते हैं, चलिए। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा लेते हैं। लेकिन जब वोट सर, देने जवाब की तो बात आती दीजिए। है तो आप वोट जिहाद क्यों करते हो भाई? आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट जिहाद करते हो। नया नगर में जहां रहता हूं 28 बूथ पर वोट जिहाद किया था इन्होंने, 28 बूथ पर। आज गोवंडी में बूथ जिहाद हुआ। सर, वोट जिहाद कैसे हो गया? सर, गोवंडी आपके में खिलाफ हुआ। वोट पड़ गया तो आज वोट जिहाद हो गया। मुंबई में वोट जिहाद क्यों? वोट जिहाद आप सारे पैसे भारतीय जनता पार्टी के लेते हो, हमारे मोदी सरकार के लेते हो, सारी योजनाओं का उपयोग करते हो, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग लेते हैं। और हम तो सर, काम वो मोदी लॉजिक जी जो नहीं है, करते हैं, देवा भाव देवेंद्र फडणवीस करते हैं, सर, वो तो सभी के लिए काम करते हैं। और शैलेश इसीलिए वो पांडे सबका जी, साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात करते हैं। फिर आप भेदभाव शैलेश क्यों करते पांडे हो जी, भाई? मोदी जी कहते हैं कि मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हूं, जिसने मुझे वोट दिया उसका भी और जिसने मुझे नहीं दिया उसका भी, ऐसा बोलते बिल्कुल। हैं। तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? क्या बात है? मैं तो सिर्फ आपसे चलो एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूं, एंड विच इज द एंड, वी आर रियली कमिंग टू द एंड ऑफ द शो। सर, आपको लगता है व्यक्तिगत तौर पे, मुझे तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं, आई डोंट, बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है पाकिस्तान में, मुझको ऐसा लग रहा है, मुझको ऐसा लग रहा है 100% सर। होगा सर। पाकिस्तान को उसकी हम छठी का दूध याद दिला देंगे। पाकिस्तान का वो हश्र नरेंद्र मोदी जी करेंगे कि उसने सपने में भी सोचा नहीं होगा। वेरी गुड। आज अपने देश के यशस्वी So let प्रधानमंत्री me go to, बनने के बाद, BNK. इसके पहले कभी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती थी। Let's go to इसके BNK. पहले कोई भी BNK, स्ट्राइक नहीं होती थी। you लेकिन disappeared. नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर Do you think we should attack आतंकवाद Pakistan को now? भी उजाड़ा है और सेना के उनके BNK. एयरबेस को भी उद्ध्वस्त किया है। बीएन कुमार साहब से पूछ ले सर। बीएन कुमार साहब, आपको क्या लगता है कि अभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए अभी इस वक्त? बिल्कुल, if the needle of suspicion is towards Pakistan, definitely the terror Everybody should expected. be ended forever. Yes. This Modi government must take a decisive action. Yes. But at the same time, go to the root cause. I have always been stressing. अपने अंदर का दुश्मन ज्यादा खतरनाक है बाहर का दुश्मन से। Correct. अंदरूनी ताकत से, अंदरूनी दुश्मनों से लड़िए, फिर ताकि आपका you'll get total energy and power and समर्थन कर रहा हूं। सारे जयचंदों को बिल से निकाल कर मारना चाहिए, मैं तो कहता हूं। सर, जयचंद की बुराई क्यों कर रहे हैं बट सर? बीएन कुमार जी, आरएसएस आप प्रमुख, सारे देश आरएसएस के गद्दार हैं। मेरा आरएसएस शब्द वापस मोहन लेता हूं। भागवत जी का राजा कहना करोड़ से- है, मोहन भागवत जी, माफी बीएन मांगता कुमार हूं। जी,
बीएन कुमार मैं ये जी, कह रहा हूँ, आरएसएस गद्दारों मोहन को- भागवत जी जो का भी कहना है कि देश इस दिखाते देश में हैं, कोई भी पाकिस्तान अहिंदू नहीं है। के देयर खड़े इज हो नो जाते हैं, अहिंद। आतंकवादी हम बन जाते हैं, मोहन आतंकवादी भागवत का बनाते हैं, कहना है, इनको मोहन इनके जी, दिलों से पांडे जी तो निकाल 2 मिनट कर रुकिए ना, मैं मारना जरा पूछ तो लूं चाहिए। मोहन भागवत जी के बारे में। मोहन भागवत जी का कहना है कि इस देश में कोई अहिंदू नहीं है। ही यूज द टर्म अहिंदू। सब Yes. एक ही एंसेस्ट्री है, एक ही एंसेस्ट्री है, और हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा, मोहन भागवत जी ने कहा, जब 150 करोड़ लोग चाहेगा कि हिंदू राष्ट्र। तो ऐसे मोहन भागवत, हाउ डू यू सी मोहन भागवत जी स्टेटमेंट? पहले पांडे जी उनको तो बोलने दो, फिर आपके पास आता, आप समाप्त कीजिए। पांडे जी पहले बीएन कुमार जी को बोलने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। कोई अहिंदू नहीं है, ऑल आर हिंदूज, ऑल इंडियंस आर हिंदूज। और एक नेशन को यूनाइट करने की उन्होंने जो ये की है, प्रयत्न किया, इट इज Yes. रियली सराहनीय, इट इज प्रेजवर्दी कि द नेशन मस्ट कम टुगेदर, स्टैंड ऑन वन लेग, वन फुट, एंड देन फिनिश टेररिज्म फॉरएवर, डेफिनेटली। एब्सोल्युटली। पांडे जी, Hats off to good thought From Mohan from Bhagwat ji. Mohan Bhagwat ji. Yes. It's really appreciate that. यस, मोहन भागवत जी कहा कि कोई अहिंदू नहीं है, सब हिंदू हैं। बिल्कुल, सब हिंदू है। मैं बोलिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी के इस वक्तव्य का पूरा समर्थन करता हूं, और यह भी कहता हूं कि देखिए, इस देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हुआ। मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला। बचा हुआ जो भाग हिंदुस्तान है, वो हिंदुओं का हिंदू है, हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र ही है। और ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र रहेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। और इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू ही है। आज पूछ Wonderful. लीजिए इन खानों से, पठानों से, ये 4 पीढ़ी पहले कौन इनके बाप थे, कौन इनके दादा थे, तो पता चलेगा ये सारे के सारे हिंदू ही है। और हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू ही है। सर, सऊदी अरेबिया में जो भी इंडियन आता है उसको हिंदी बोलते हैं ना। बिल्कुल, हिंदी, बिल्कुल। कम इधर आइए, अरे सीधी सऊदी बात है। अरेबिया वाले तो यहाँ के मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं मानते। हिंदी, पाकिस्तान हिंदी, के हिंदी, मुसलमान yes. यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं मानते। That's ये right. तो झूठो जबरदस्ती का अपने सर पे टोपा लगाए फिरते हैं। इनको तो कोई मानने को तैयार नहीं है। Right, so I hope the government will take decisive action. हिंदू मैं उम्मीद करता हूं आप सनातनी कि हो, आदरणीय तो नरेंद्र कैसे मोदी मानेगा? जी एक निर्णायक एक्शन लेंगे, और ऐसा एक्शन लेंगे कि जितने भी लोग आतंकवादियों के आका हैं उनको मालूम पड़ जाए कि भाई उनका जन्नत में जाने का टाइम आ गया है। सीधी बात है। इनको सबको आप जाइए, 72 सीधा हुए ऊपर दिखाई जाइए। जाएंगी। आपको- ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आपको 72 इनको हूर मिले। धूल चटाया जाएगा, इनको बिल में से निकाल कर कुचला जाएगा। सबको 72 हूरों के पास भेज दो ना सर, सबको भेज दो। बिल्कुल, जाओ जाओ बिल्कुल। जाओ, जाओ, जाओ। ये उसी लिए तो ये सब तमाशा लगा के रखे हैं ना। लेकिन इनको शैलेश भक्तों पांडे जी और बोले बीएन कभी के तो साथ आतंकवादी बन गए। ये बात मैं हर बार तभी तो बोलता कर हूं। रहे हैं, तभी तो जिहादपन कर रहे हैं। सर, ये बात मैंने सबसे पहले इस्लाम जिमखाना में बोली थी, बहुत साल पहले। मैं डेली का एडिटर हुआ करता था तब। मैंने ये कहा 72 हूरें तो मिल जाएंगी यार, 72 वर्जिन मिल जाएंगे आपको। हूर नहीं बोला था मैंने शब्द। मैंने कहा यू गेट 72 वर्जिन्स। लेकिन ये क्या गारंटी है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये मालूम नहीं भाई। 72 वर्जिन जरूर मिलेंगी। दे माइट ऑल्सो बी 72 मेल्स। ये याद रख लो, 72 मेन याद रख लो भाई। That's it, gentlemen. Thank you very much. It's been a great pleasure as always talking to you, and I really hope we see some decisive action very, very shortly. Thank you very much. Namaskar. Yeah. भारत बहुत माता बहुत की जय। धन्यवाद जय राजीव जी और हिंद। प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हिंद। Thank you. जय। Thank you very much. Right. So can we hear what जो प्रदीप जी ने अभी अभी मेंशन किया, मोहन भागवत जी ने जो बोला कि यहाँ का हर शख्स हिंदू है। कैन वी हियर दैट प्लीज? जरा सुनाए क्या बोला था मोहन भागवत जी ने, वो ऑर्गेनाइजर के। No Brahmin is allowed in Sangh. No other caste is allowed in Sangh. No Muslim is allowed, no Christian is allowed, no Shaiva, no Shakta. Only Hindu is allowed. So people with different denominations, Muslims, Christians, of any denomination, they can come to Sangha. Keep your separateness out. Your speciality is welcome. But when you come inside Shakha, you come as son of Bharat Mata, member of this Hindu society. So Muslims come to Shakha.
Christians come to Shaka. As all other castes from the routinely Hindu society, routinely called Hindu society, they also come to Shaka. But we don't take their count and we don't ask who they are. We are all sons of Bharat Mata. That is how Sangha works. The outreach to hitherto untouched sections or hitherto kept away from the society, such sections, we have to specifically contact them. So there is outreach program. But outreach program doesn't mean that we will do something there. Actually, Sangha says, we will not do anything for anybody. Each has to do his own duty. Each has to bring about his own uddhar. Nobody else will come to you. Even God will help those who will help themselves. We will enable you to do that. We will prepare you to do that. So don't expect anything from Sangha. But if you come to Sangha without expecting anything from any other fellow, you can do your own. That is what we are going to teach. So outreach is there. If they are doing some noble deeds, we will help them. But schools for Muslims, schools for Christians, schools for Brahmins, schools for non-Brahmins, we don't do that. That was nice. That was very nice, प्रदीप जी. बिल्कुल. उन्होंने कहा कि बस जो भी संघ में आता है वो भारत माता का सुपुत्र है भाई. बिल्कुल. आप ईसाई हैं, आप मुसलमान हैं, आप जो भी हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप वैश्य हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप दलित हैं, आप वो सब बाहर छोड़ के आओ. एक बार आप संघ में आ गए, आप भारत माता के सुपुत्र हैं, बस. That's it. And ask not what the country can do for you. Ask yourself what you can do for the country. Effectively, that's what he's saying. Yes, exactly. And I think I agree with that. But the only thing is, Pradeep ji, what you mentioned, I think is a very, very valid point. Mr. Modi had said very, very clearly that every act of terror will be looked upon as an act of war. What happened in Delhi is an act of terror. So I hope there will be proper retaliation. I don't mean a conventional war. It could be anything. Whatever it is, जो भी लोग पाकिस्तान में, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार ने बल्कि मना किया है ये जैश मोहम्मद को और क्या है वो दूसरी हिजबुल मुजाहिदीन को और बाकी सब लोगों को, भाई लश्कर तोयबा, भाई ये सब ना करें, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं. बट आई डोंट बिलीव दैट बिकॉज एवरीबडी न्यू कि ये जनरल मुनीर साहब जो हैं, जो अभी फील्ड मार्शल मुनीर बन गए हैं, फील्ड मार्शल, वो ये कुछ ना कुछ करेगा ही. रावलपिंडी के पास आपने, जैसे अभी प्रदीप जी आपने बताया, नूर खान बेस पे हम लोगों ने हमला कर दिया, नूर खान बेस को तोड़ दिया. और नूर खान बेस पे तो सर इट वाज 5 feet of reinforced concrete and we were still able to find a way and blow up all those things which are inside. Some people suspect they were nuclear bombs in American possession, and I think about 40 American soldiers died there, which is why Mr. Trump decided that it was time for him to intervene or whatever. But this time, I hope what we do is so decisive that there is no question of Pakistan sponsoring any other terrorist outfit over here in India. I hope it happens. Pradeep ji. Bilkul, absolutely, sir. The incidents in Nur Khan base was exactly what compelled Trump to, force himself to ask Prime Minister Modi and Pakistan to come end the war. And that's right. And we now, as our armed forces say, that the entire Pakistan is in our radar. Along with that, ISRO and all it's a one operation. You don't have different sections. It's all merged together. It's all merged together, united, absolutely, and they're working together as a team. So I think the targets are all set. It's all Modi ji's, this is Lilia. Khatam. I think that's the end of it. And he said, as Modi said, any act of terror is an act of war and will be met with equal force. So Operation or disproportionate force. So Operation Sindoor continues. Bilkul, sir. It all depends upon what shape it will take. Yes.
और चलते चलते आपको ये भी बता दें कि सबसे ज़्यादा टर्नआउट हुआ है बिहार के सेकंड फेज में। आज तक कभी भी बिहार ने इतने ज़्यादा वोटर नहीं देखे, इतने ज़्यादा वोट डलते हुए आज तक कभी बिहार ने नहीं देखे। नाउ क्या Now ये everybody is saying the exceptionally high turnout is because of us, because of him, because of Modi and Nitish Kumar. They say Tejasvi, this is vote against the government. People come out in large numbers only when they're fed up with the government, and this is for him, Tejasvi as a CM. But let's see the It results. could also be because there have been so many new voters that have come in, sir. Bilkul. And they have come out, and also lots and lots of women have come out to vote. Now, women coming out in large numbers usually means a vote for Nitish Kumar, usually. लेकिन जब 67% जाकर के वोटिंग परसेंटेज पहुंचा है तो इसका मतलब ये हुआ कि people are looking for change. That is what conventional wisdom says. Now we don't know. It could also be that they are looking for a change in the sense they want a BJP chief minister. ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बदलाव होगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार तो वापस मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, ये तो मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं। भले बीजेपी का बने या तेजस्वी यादव बने, लेकिन नीतीश बाबू नहीं आते वापस, जहां तक मैं समझता हूं। In any event, I don't think his health permits that he should come back as chief minister. That's what I think. Well, and in case you haven't subscribed to the channel as yet, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें। Please do subscribe to the Fastest channel. growing channel of the nation. When you click to that icon of subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. और मैं आप सब लोगों से वादा करता हूं कि जो अभी चीज मैंने मेंशन करी कि मेजर शैतान सिंह को जो एनहांस पेंशन मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिली है। वी विल नॉट लीव दैट सब्जेक्ट। याद रखें, उसके ऊपर एक फिल्म भी आ रही है, फरहान अख्तर साहब की एक फिल्म भी आ रही है, 127 या ऐसा कुछ करके एक फिल्म भी आ रही है। आई होप ही हैज डेल्ट विद दैट सब्जेक्ट टू। आई होप सो। कि कैन यू इमेजिन अ वॉर हीरो, हिज फैमिली हैज टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट जस्ट फॉर अ परमवीर चक्र अवॉर्डीज पेंशन? कैसे लोग हैं हम लोग यार? बिकॉज सम क्लर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिसाइडेड, हम देखते हैं क्या समझते हैं अपने आप को, ये परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं, इनको एनहांस पेंशन मिलेगी। आई थिंक मिस्टर मोदी शुड इंटरवीन पर्सनली हियर। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम। आप रेजंगला पास के पास आपने इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बना रखा है मेजर शैतान सिंह का, परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं। जोधपुर में उनका एक बस्ट भी है, किसी जगह पे एक स्टैचू भी लगा हुआ है उनका। उनके परिवार को आज तक कुछ मिला नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कुछ करेंगे। बट दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। आप देखते रहें नेशन नाउ और अपने कमेंट जरूर भेजें। वील ऑफ कोर्स बी बैक टुमारो। एंड आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind.